Good morning, students. I am your Sanskrit teacher, Mr. Parikshit Rana. Welcome you all in my YouTube channel. Friends, today we will discuss our unit number 4, Janardanasya Paschimah Sandesah, final message of Sri Krishna. Paschimah means final. This is the introduction of our unit. I am going to read this. In Sanskrit literature field, great poet Bhas is well reputed for writing plays. He has written 13 plays which are known as Bhas Natak Chakram. So, dramatist Bhas has written one book named Bhas Natak Chakram containing 13 plays. The excerpt present here is taken from his one-act play Dut Ghatotgacham. So, this Janardanasya Paschimah Sandesa is a part of Dut Ghatotgacham, and this Dut Ghatotgacham chapter is taken from this Bhas Natak Chakram. The theme of the excerpt is based on the Mahabharata. Battle of Mahabharata is going on in Kurukshetra, and today Abhimanyu is unjustly killed in it. Hence, Arjun is very sad and has announced to kill them who had killed Abhimanyu. In this tragic situation, Sri Krishna thinks to try once again to prevent this war anyway, by putting forward the tragic incident of Abhimanyu's killing and the sorrowful situation of Pandav in front of Dhritarashtra and Duryodhana. Sri Krishna plans to convince Dhritarashtra. He selects Ghatotkacha as his envoy and sends through him a message of treaty. But engrossed in the madness of war, Duryodhana, his companion Shakuni, and others are not ready to listen to the message of treaty. At last, Ghatotkacha makes them listen to the final message of Sri Krishna. The internal dialogue of Ghatotkacha and envoy with Duryodhana and Shakuni produces dramatic pleasure. Selecting Ghatotkacha, a son of Demoness, as a character, Bhas has successfully tried to create an impression of demonic tendency of Duryodhana on mind of audience. On one hand, Ghatotkacha, son of Demoness, behaves like a man, and on other hand, Duryodhana, son of human, behaves like a demon. Bhas, with his skillful dramatic art, has created a beautiful contradiction here. At the end, the misbehavior of Duryodhana becomes the cause of destruction of Kuru race, the whole of his race. The fact, one who does not accept the proposal of compromise ruins himself and his family, is shown through this play. So, in this chapter, due to the death of Abhimanyu, Arjun became very angry and he decided to destroy all the soldiers and all the people of Duryodhana. So, in order to prevent the war, Sri Krishna sent a message through Ghatotkacha. So, line to line I will explain, and we will try to understand all meanings. We will discuss here the grammar also. So, look here, concentrate here. The first line, Ghatotkacha. Pravishya. Pravishya means enters. Aye, ayam atra bhavan Dhritarashtra. Oh, your majesty Dhritarashtra. Anarya satasya utpadayita. Utpadayita means here producer. And Anarya, who is not a Arya, means Anarya. Satasya means 100. So, producer of 100 ignoble son. उपश्रुत्य, गोइंग नियर. अब ये घटोत्कच धृतराष्ट्र के पास जाता है और जाने के बाद कुछ बोलता है. पितामह, फादर,
grandfather. Abhivadaye Gatod. I bow down to you, Gatod. Look here. He uttered only half word, Gatod, not a Gatod Gach. Iti ardha ukte. He uttered it half. No, no, I am akramaha. No, no, this is not proper. Akramaha means this is not a kram, means this is not proper. Why he said so? According to Ghatotkacha, Yudhishthir adi cha me guruvo bhavantam abhivadayanti. So Yudhishthir and my other elders bow down to you first. वो ऐसा मान रहा है कि पहले मेरे वडील ने जो मेरे गुरु ने जो वंदन कहा है वो तो पहले मेरे एल्डर्स का नंबर आता है, फिर मेरा नंबर आता है. सो युधिष्ठिर एंड अदर्स गुरुवो भवंतम अभिवादयंती. सो युधिष्ठिर एंड अदर माय एल्डर्स बो डाउन टू यू फर्स्ट, पश्चात एंड देन घटोत्कच अहम अभिवादये, एंड देन आई एम घटोत्कच बो डाउन टू यू. धृतराष्ट्र एहि एहि पुत्र कम सन कम. घटोत्कचः अहो कल्याण खलु अत्र भवान. योर मैजेस्टी इज इंडीड नोबल. कल्याणाम प्रसूतिम पितामहम आह. आह मीन्स सेड. भगवान चक्रायुधः. चक्रायुधः वर्ड इज यूज फॉर श्री कृष्ण. आई विल एक्सप्लेन इट लेटर. दिस इज अ बहुव्रीहि समास. सो चक्रायुधः मीन्स श्री कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण sent a message or said to grandfather who want the welfare of all. यानी पितामह जो सबका कल्याण चाहते हैं, वैसे पितामह को यहाँ कल्याण चाहते हैं ऐसा पितामह के लिए कहा गया है कि जो पितामह जो कल्याण की अपेक्षा रखते हैं ऐसे पितामह को भगवान श्री कृष्ण ने मैसेज भेजा है. सो श्री कृष्ण हैज सेंट अ मैसेज टू grandfather who want welfare. धृतराष्ट्रः आसनात् उत्थाय, स्टैंडिंग फ्रॉम हिज थ्रोन, स्टैंडिंग फ्रॉम हिज सीट. देखो यहाँ श्री कृष्ण का नाम पढ़ते ही वो अपनी जगह पर से खड़े हो जाते हैं. हर एक को उनका डर है. सो धृतराष्ट्र आसनात् उत्थाय, स्टैंडिंग फ्रॉम हिज सीट, किम आज्ञापयति भगवान चक्रायुधः. What message has sent श्री कृष्ण. श्री कृष्ण ने क्या मैसेज भेजा है. घटोत्कचः न न न नो आसन स्थेन एव भवता श्रोतव्यो जनार्दनस्य संदेश. सो बीइंग सीटेड ऑन द थ्रोन लिसन द मैसेज ऑफ श्री कृष्ण. आप ऐसे खड़े मत हो जाओ और खड़े खड़े मैसेज आपको नहीं सुनना है. आप अपना स्थान ग्रहण करो और स्थान ग्रहण करने के बाद श्री कृष्ण का मैसेज सुनो. सो बीइंग सीटेड ऑन द थ्रोन लिसन दी मैसेज ऑफ श्री कृष्ण. नाउ धृतराष्ट्रः यदा आज्ञापयति भगवान चक्रायुध. सो एज द लॉर्ड कृष्णा विशेष, उपविशति मीन्स सेट. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट फ्यू लाइन्स ऑफ जनार्दनस्य पश्चिमः संदेशः. Now we will discuss some grammatical points. So first is anarya satasya. This is a samas. Which samas? This is a naya tatpurush samas. Why it is a naya tatpurush samas? Because anarya means ignoble. It means na arya, नॉट अ नोबल. तो जिसके आगे ऐसे न लगता है डिसजॉइन करने पर अनार्य, तो ये अ निकल जाता है और इसके आगे न लगकर न आर्य. फॉर एग्जाम्पल असत्यम, तो असत्यम में से अ निकल जाता है और न सत्यम, नॉट अ ट्रूथ, न आर्यम, इट मीन्स नॉट अ नोबल. सो दैट इट इज अ नय तत्पुरुष समास. अनुत्तरम, तो न उत्तरम, लाइक दैट.
Okay. Now second one, Gatod Gacho Aham. This is a Sandhi. Which Sandhi? Visarg Sandhi. I have explained it many times. So why it is a Visarg Sandhi, we will discuss here. Look here. If I disjoin this, Gatod Gacha Ha plus Aham. So according to the rules, आप ये च बोलोगे तो च के बाद क्या सुनाई देता है? अ. Okay. So if the before visarg there is a and if after visarg there is a, then this a turn into o, यानी गटोद गचो o, and second a turn into अवग्रह. ये देखो अवग्रह दिख रहा है, बराबर. So this is the rule of visarg sandhi. If there is a before the visarg and if there is a after the visarg, then this first a is turned into o and the second a is turned into avagrah. Okay. So gatod gacho aham. Now the next one is chakrayudah. This friends, this is a bahuvrihi samas. Why it is a bahuvrihi samas? Bahuvrihi samas always tells us about the थर्ड पर्सन और ह्यूमन बीइंग और एनीथिंग, किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की बात करता है, बराबर. तो इफ आई डिसजॉइन दिस वर्ड चक्रह प्लस आयुधः, चक्रह प्लस आयुधः, चक्रह मीन्स विल एंड आयुधः मीन्स वेपन. सो हुज वेपन इज विल, दैट वन, जिसका वेपन चक्र है वह कौन है? वह आप सभी जानते हो उसे, विष्णु, श्री कृष्ण. श्री कृष्ण का वेपन क्या है? चक्र. सो दैट इट इज अ बहुव्रीहि समास. चक्रायुधः, चक्रः आयुधः. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन, श्रोतव्यो. फ्रेंड्स, दिस इज अ कृदंत. आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन इट अर्लियर. इफ तव्यः, tavyah, tavya and tavyam, these three, if tavyah, tavya and tavyam is there, it means it is a विद्यर्थ कृदंत. देखो यहाँ पर आपको तव्य दिख रहा है, तो चाहे कुछ भी हो, तव्यः, तव्या और तव्यम. तव्यः मैस्कुलाइन जेंडर में आता है, तव्या फेमिनाइन और तव्यम न्यूटर. सो तीनों में से कोई भी हो, इट मीन्स इट इज अ विद्यर्थ कृदंत. ओके. नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, घटोद्गचः पितामह श्रूयताम. ओ ग्रैंडफादर लिसन. अब ये जो भी कुछ सुनाने जा रहा है घटोद्गच, वो श्री कृष्ण का मैसेज नहीं है. ये कई स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं कि ये मैसेज है, दिस इज द मैसेज ऑफ श्री कृष्ण, बट दिस इज नॉट अ मैसेज ऑफ श्री कृष्ण, बट दिस इज अ लैमेंटेशन ऑफ अर्जुन. अभिमन्यु की मृत्यु के बाद, अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन जो विलाप कर रहा है उसके बारे में यहाँ पर घटोत्कच दुर्योधन और धृतराष्ट्र के सामने और सभी दरबारियों के सामने उसका वर्णन कर रहा है कि अर्जुन ने किस तरह विलाप किया है. ओके. पर एक बात है कि अभिमन्यु की मृत्यु क्यों हुई? ही वॉज अ ब्रेव पर्सन एंड ही वॉज ब्रेव वॉरियर. इन स्पाइट ऑफ दिस, व्हाई द अदर वॉरियर किल हिम? इसके पीछे भी एक कहानी है. यानी जब अर्जुन, पहले तो यह है कि ये अभिमन्यु कौन था, तो अभिमन्यु सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र था. सुभद्रा जो है वो श्री कृष्ण की बहन का नाम है और जो अभिमन्यु था वो इन दोनों का पुत्र था. तो एक बार अर्जुन सुभद्रा के सामने ये चक्रव्यूह के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे. तो जब वह एक्सप्लेन कर रहे थे उस टाइम चक्रव्यूह के अंदर एंटर कैसे होते हैं, 7 चक्रव्यूह के अंदर एंटर कैसे होते हैं, वो उसका वर्णन अर्जुन जब कर रहा था तब 7 चक्रव्यूह के बारे में सुभद्रा ने सुना. उस वक्त
ये अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में था, तो वो भी यह सब कुछ सुन रहा था। तो जब भी अर्जुन एक बार चक्रव्यूह के अंदर एंटर होने के बाद बाहर कैसे निकला जा सकता है उसका एक्सप्लेन करने लगा, उस टाइम सुभद्रा को नींद आ गई। अब नींद आ गई, इसीलिए अभिमन्यु को पता नहीं चला कि चक्रव्यूह के अंदर जाते हैं वो पता चला, परंतु चक्रव्यूह से बाहर कैसे आते हैं वो उसको पता नहीं चला। इसीलिए अभिमन्यु युद्ध में सारे चक्रव्यूह तोड़कर, 7 चक्रव्यूह तोड़कर अंदर तो चला गया, पर बाहर कैसे निकलना है वो उसको पता नहीं था, इसीलिए उसकी वहाँ पर करुणतापूर्वक मृत्यु हो गई। तो उसकी मृत्यु होने के बाद अब अर्जुन की स्थिति कैसी है इसका वर्णन इस पैराग्राफ में किया गया है। आई एम गोइंग टू रीड दिस। पितामह श्रूयताम, ग्रैंडफादर लिसन। हा वत्स अभिमन्यु, ओ सन अभिमन्यु। हा वत्स, ओ सन, कुरुकुल प्रदीपः, लाइट ऑफ कुरुरेस। ओ सन अभिमन्यु, यदुकुल प्रवाह, लाइट ऑफ साइन ऑफ यदुरेस। तव जननी, योर मदर, मातुलम मीन्स मैटरनल अंकल, एंड मम अपी एंड मी यानी अर्जुन, मी, परित्यज्य एबेंडनिंग पितामहम। ये पितामह वर्ड किसके लिए है? पांडुराज। पांडुराज जो थे, पांडु राजा जो थे, वो 5 पांडवों के पिता थे। तो यहाँ पर ऐसा कहा है कि तव जननी, योर मदर, मैटरनल अंकल एंड मी एबेंडनिंग पितामहम द्रष्टुम आशय स्वर्गम अभिगतो असि। व्हाई हैव यू गॉन टू हेवन? सो ओ अभिमन्यु, व्हाई हैव यू गॉन टू हेवन एबेंडनिंग योर मदर, मैटरनल अंकल एंड मी? ये विलाप कौन कर रहा है? अर्जुन। पितामह, अब ये जो पितामह है वो धृतराष्ट्र के लिए है। सो पितामह, ग्रैंडफादर, एक पुत्र विनाशात ड्यू टू द डेथ ऑफ वन सन अर्जुनस्य तावत् ईदृशी खलु अवस्था। अर्जुनस्य कंडीशन, अर्जुन, द कंडीशन ऑफ अर्जुन बिकम लाइक दिस, द कंडीशन ऑफ अर्जुन बिकेम लाइक दिस। का पुनर्भवतो भविष्यति, देन व्हाट टू से अबाउट यू। अब व्हाट टू से अबाउट यू ऐसा क्यों कहा? आपका क्या होगा? ऐसा इसलिए कहा कि एक ही पुत्र के विनाश से, एक ही पुत्र की मृत्यु से अर्जुन की इतनी करुण दशा हुई है, तो आपके तो 100 है, अगर आपके 100 चले गए तो आपकी दशा क्या होगी? ततः क्षिप्रम इदानीम आत्मबलाधानम कुरुस्व, देन समन अप द स्ट्रेंथ इन योर सोल। आप जितनी शक्ति इकट्ठी करनी हो कर लो। यथा ते पुत्र शोक समुत्थितो अग्नि, अग्नि दहेत प्राणमयम हविरति, द फायर विच राइजिंग फ्रॉम द ग्रीफ ऑफ द सन विल बर्न योर बॉडी। ये पुत्र के मृत्यु के शोक के कारण अर्जुन के अंदर जो अग्नि उत्पन्न हुई है वो तुम सबको जला देगी। अब शकुनी की एंट्री होती है। शकुनी, यदि स्वाद वाक्य मात्रेण निर्जितेयम वसुंधरा, वसुंधरा मीन्स हियर अर्थ and निर्जितियम means conquered. So earth cannot be conquered only by words. शकुनी क्या क्या बोल रहा है? सिर्फ बातों से, सिर्फ शब्दों से पृथ्वी को जीता नहीं जा सकता है। वाक्य यदि भवेत सर्व क्षत्र वधः कृतः, ओनली बाय क्षत्रियस कैन नॉट बी किल्ड ओनली बाय मियर वर्ड्स। सिर्फ शब्दों से क्षत्रियों को पराजित किया नहीं जा सकता। हम देखो ऐसी कटुवाणी जो बोलने वाला है वो शकुनी है, इसीलिए घटोत्कच यहाँ कहता है घटोत्कचः शकुनी रेस व्याहरति। ओह शकुनी सेड दिस, ऐसा शकुनी ही बोल सकता है और कोई नहीं। भो हो शकुने, ओ शकुनी, अक्षान विमुच्य भवबाण योग्य, लीव द डाइस एंड बिफिटिंग फॉर आर्चरी। यानी तुम ये अक्षान, यू नो डाइस, यानी जो पासे, जो शकुनी पासे खेलने में जो माहिर था उसकी बात कर रहे हैं कि तुम ये पासे की भाषा छोड़ो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब ये शकुनी को पासे के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता है।
मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि ये जो पासे थे, जो डाइस थे, वो शकुनी के पिता की हड्डियों में से बनाए गए थे। तो उसके पास जो पासे थे वो उनके इशारों पर ही चलते थे। वो अगर बोले कि 6 तो वो 6 ही गिरते थे, वो बोले कि 2 तो 2 ही गिरता था। इसीलिए इस शकुनी ने सारे पांडवों को हरा दिया था। दुर्योधन भो भोः प्रकृतिम गतः डिस्प्लेइंग हिज ओरिजिनल नेचर। अब देखते दुर्योधन बोल रहा है यहाँ पर कि डिस्प्लेइंग हिज ओरिजिनल नेचर। ओरिजिनल नेचर मीन्स व्हाट? कौन सा ओरिजिनल नेचर? तो दुर्योधन का कहना है कि ये डेमन का पुत्र है, राक्षस का पुत्र है, इसके लिए ये उनके स्वभाव पे गया है, यानी उसकी प्रकृति राक्षस की है। ऐसा एक्चुअली हमें बहस ऐसा बताना चाहते हैं कि ही बिहेव लाइक अ नोबल वन। हियर घटोत्कच बिहेव लाइक अ ह्यूमन बीइंग एंड दुर्योधन बिहेव लाइक अ डेमन। सो डिस्प्लेइंग हिज ओरिजिनल नेचर, अपने स्वभाव पे गया है। वयमपि खलु रौद्रः राक्षसो ग्रस्त स्वभावः वी आर ऑल्सो टेरिबल। रौद्रः मीन्स वी आर ऑल्सो टेरिबल लाइक डेमन। हम भी कैसे है? वी आर ऑल्सो लाइक अ डेमन। हम भी राक्षस जितने ही खतरनाक है। ओके, नाउ सम ग्रामेटिकल पॉइंट्स ऑफ दिस पैराग्राफ। कुरुकुल प्रदीपः। व्हाट इज दिस कुरुकुल प्रदीपः? दिस इज अ षष्ठी तत्पुरुष समास। इसमें 2 समास छिपे हुए हैं। इफ आई डिसजॉइन दिस वर्ड कुरुकुलस्य प्रदीपः, तो यहाँ पर श्य आया है। देखो, तो श्य हमेशा षष्ठी विभक्ति में ही आता है, सो दैट इट इज अ षष्ठी तत्पुरुष। लाइट ऑफ कुरुरेस, आप इसका अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन करोगे तो लाइट ऑफ कुरुरेस, तो ऑफ वर्ड आया इंग्लिश में और संस्कृत में श्य वर्ड आया, सो दैट इट इज अ षष्ठी तत्पुरुष समास। अब ये दूसरा भी समास है, ये दूसरा समास नहीं है। ओके, इज द नेक्स्ट वर्ड इज पुत्र शोक समुत्थितो अग्नि। यहां पर यह दूसरा समास है, पुत्र शोक समुत्थितो अग्नि। अगर हम ये कुरुकुलस्य प्रदीपः को कुरुकुलेन प्रदीपः, तो कुलेन वर्ड आए तो इट इज अ तृतीया तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। नाउ थिंक अबाउट दिस, पुत्र शोक समुत्थितो अग्नि। सो यहां पर भी ये श आया है, पुत्रस्य शोकः समुत्थितः, द फायर अराइज ड्यू टू द डेथ ऑफ सन। सो इट इज ऑल्सो षष्ठी तत्पुरुष समास। यहां पर ये दूसरा समास भी है, मैंने इसका एक्सप्लेन किया, उसी तरह यहां देखो, पुत्र शोकेन समुत्थितः। अब यहां पर है पुत्र श्य, अब श्य वर्ड आया इसलिए षष्ठी तत्पुरुष है पर यहां पर पुत्र शोकेन समुत्थितः। शोकेन यानी दिस इज अ इंस्ट्रूमेंटल केस। राम तो रामेण, बाल तो बालेन, उसी तरह पुत्र शोकेन। ओके, सो पुत्र शोकेन समुत्थितः, अराइज फायर अराइज ड्यू टू द डेथ ऑफ सन। तो यहाँ शोकेन वर्ड आया, बाय वर्ड आता है, विथ वर्ड आता है, इसीलिए वह क्या है? तृतीया तत्पुरुष। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज शकुने। शकुने, तो ये विभक्ति है, दिस इज अ केसेस, 2 केसेस आर देयर हियर। शकुने पंचमी षष्ठी एक वचन, तो ये पंचमी विभक्ति भी है और षष्ठी विभक्ति है। कैसे? तो इसके लिए आपको एक टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो है ई एंडिंग मैस्कुलाइन जेंडर। तो व्हाट इज द मेन वर्ड ऑफ दिस वर्ड शकुने? सो मेन वर्ड इज अ शकुनी। आप शकुनी बोलोगे तो नी के बाद क्या सुनाई देता है? ई, सो दैट इट इज अ ई एंडिंग मैस्कुलाइन जेंडर फॉर्म। तो आपको
ई एंडिंग का टेबल आप अगर देखोगे, ई एंडिंग मैस्कुलाइन जेंडर का आप टेबल देखोगे तो वहाँ पर पंचमी एक वचन में इसके जैसे ही वर्ड होंगे। यहाँ पर सकू ने है तो उसके जैसे वर्ड होंगे। ओके, आप षष्ठी विभक्ति में भी आप देखोगे तो उसमें भी इसके जैसा ही वर्ड होगा। ई एंडिंग मैस्कुलाइन जेंडर की पंचमी एक वचन एंड षष्ठी एक वचन का टेबल में आप वर्ड्स देखोगे, फॉर्म देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये सकू ने जैसे लिखा है उसके जैसे ही सारे वर्ड दिखाई देंगे। ओके, सो यू हैव टू प्रिपेयर द ई एंडिंग मैस्कुलाइन जेंडर। सो सकूने इज अ पंचमी षष्ठी एक वचन। ओके, यहाँ पर ये तृतीया विभक्ति नहीं है, दिस इज ओनली अ षष्ठी तत्पुरुष समास। कुरुकुलस्य प्रदीपः श वर्ड आया इसीलिए षष्ठी तत्पुरुष समास। पहले मैंने आपको बताया कि ये तृतीया भी हो सकती है पर ये तृतीया नहीं है, बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया था। दिस इज अ कुरुकुलस्य, श है इसीलिए इट इज अ षष्ठी तत्पुरुष। यहाँ पर दो है, ये वर्ड में दो विभक्ति है, दो समास है, विभक्ति नहीं, इस वर्ड में दो समास है। ये जो वर्ड है उसमें एक ही समास है और वो है षष्ठी तत्पुरुष समास, और इसमें दो समास, यानी एग्जाम में ये वर्ड आए तो आप या तो तृतीया तत्पुरुष लिख सकते हो या तो षष्ठी तत्पुरुष लिख सकते हो। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस इज पार्ट 1 ऑफ यूनिट नंबर 4, जनार्दनस्य पश्चिमः संदेशः। नेक्स्ट पार्ट we will discuss in next period. If you have any doubt, you can contact me anytime.